Assalamu alaikum, all my friends and all candidates. My name is Adiba Ambari. I am from Bharaukapura. I am BA appearing from Talimuddin Niswa Degree College, Paharpura, Mऊ. लक्ष्य जिंदगी में लक्ष्य हासिल करने की कला एक ऐसी कला है जो आपको आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करती है। और हमें अपने सपनों को अगर हकीकत में बदलना है तो उसके लिए कार्य करना होगा, उसके लिए मेहनत करना होगा, क्योंकि हर चीजें जो चीजें किस्मत में लिखी होती है ना उसे हम मेहनत करके बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा है कि अगर अगर सफलता का राज ये है कि आप उसके लिए कार्य करें और उसके लिए मेहनत करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो उसके लिए आपको अपने नोट्स को पढ़ना होगा, अपने सिलेबस को समझना होगा और उसके लिए खुद को तैयार करना होगा और उस पर कार्य करना होगा, तभी जाकर आप अपने एग्जाम्स में कामयाब होंगे। इसलिए अगर हमें अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करना है तो उसके लिए मेहनत करना होगा, उसके लिए खुद को तैयार करना होगा कि हम ये कर सकते हैं और उसके लिए सारे डिसिप्लिन को फॉलो करने होंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू। Assalamualaikum, respected sir and my dear friends. Today I want to talk to you about effective body language. Effective body language means how to use our face, eyes and hands, and how we sit and stand. If we smile, stand straight and look in the eyes of people, we look confident. If we don't do these things, we look nervous. Our smile shows positivity, or eye contact shows confidence, and our body posture shows respect. If we use effective body language, people understand us better, people trust us more. Effective body language makes our talk more powerful. So we should reform our body language. Thank you so much. Assalamu alaikum and good morning everyone. Life is a journey filled with ups and downs. There is a moment when everything feels perfect and there are the times when it's like the world is falling apart. Both in these moments and everything in between, one thing is keep us moving forward. That one thing is hope. Hope is not just a feeling. It is the belief that no matter how the dark night is, the sun will rise again. It is the quiet voice inside us that says, don't give up. Better days are coming. It gives us strength to face challenges, to and to fight through pain and to dream of a brighter tomorrow. Every great person we admire, from scientists to freedom fighters to everyday heroes, have held on to hope. Even in the worst situation of their lives, Nelson Mandela once said, may your choice reflect your hope, not your fear. So that he also lived the truth during not giving up during 27 years in prison. In our lives, we all face challenges in studies, relationships, career, health, etc. But remember one thing, as long as we are alive, there is always a chance to change. Hope is a spark that lights our way from the darkness. Without hope, everything you had was lost. But if you hold hope, everything you can achieve in your life, everything you can rise above anything. Hope gives
our efforts, our meaning and purpose to our dreams. So never lose your hope, no matter how the life gets hard, no matter what would happen to you. Hold on, keep going. As long as we are alive, there always a hope. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to all of you. Myself Sara Khatun, BSc third year student from Talimuddin Miswan Degree College. I would like to express my heartfelt thanks to MLH Academy for imparting the part of public speaking. I would today I am giving to deliver a speech on try to find this happiness in small things. Happiness is not big dreams or expensive things. True happiness, true happiness comes from just simple moments like enjoying nature, helping someone, spending time with family, or even a smile from a friend. These little joys make life beautiful and peaceful. We should We should not wait for big achievements to feel happy. Instead, we should learn to appreciate the blessing we already have. Instead, we can spread positivity and make life more meaningful. I can conclude my speech thanking you all listening for all my for all me patiently. Thank you so much. ना थके हैं पैर, ना थके हैं पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसले हैं जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए तो अभी सफर जारी है। माय नेम इज पैमन सारिया, आई बिलोंग टू खेदुपुरा मऊ। मेरे आज का टॉपिक है बेटे की जिम्मेदारी। एक बेटा सिर्फ पैदा नहीं होता, एक बेटा सिर्फ पैदा नहीं होता, उसे बोझ के साथ जन्म दिया जाता है। लड़कियां दुआओं में मांगी जाती हैं, लड़के भी मांगे जाते हैं, लेकिन सिर्फ बोझ उठाने के लिए। एक बेटा पैदा होते हुए उसे मर्द बना दिया जाता है। उसे खिलौनों की जगह ताने सुनने को मिलते हैं। हर रिश्ता फर्द उसी के हिस्से आता है। वो रोता नहीं है क्योंकि उसे सिखाया जाता है। मर्द तो रोते नहीं है, लेकिन हकीकत में सबसे ज्यादा वही रोता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज फलकनाज। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब होता है इंसान अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाए, इमोशंस पे कंट्रोल कर पाना, चाहे सिचुएशन कितनी भी हार्ड हो, क्योंकि आप सब कोई जानता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, कभी हैप्पीनेस, कभी सैड, कभी सक्सेस, कभी फेलियर। लेकिन एक इमोशन स्टेबल पर्सन वही है जो उन सब चीजों को बैलेंस करके रखता है, वही लाइफ में आगे भी बढ़ पाता है। इमोशन स्टेबल पर्सन गुस्से में गलत डिसीजन नहीं लेता है, हैप्पीनेस में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है और टेंशन में पैनिक नहीं करता है, यही इसकी पहचान है। तो वो हर सिचुएशन में काम और पॉजिटिव रहता है। इसे डेवलप करने के लिए हमें पेशेंस रखना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसको अडॉप्ट करनी चाहिए, अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए कि वो टेंशन में पैनिक ना करे। एंड रिमेम्बर, हम सिचुएशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो बी इमोशनली स्ट्रांग बिकॉज ये क्वालिटी आपकी सक्सेस, हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए एक की है। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum everyone. I hope you all doing all great.
So today I am going to speak on a very interesting topic, real life versus real life. So रियल लाइफ तो वो होती है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा कलरफुल, बहुत ज्यादा ग्लैमरस नजर आती है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, स्ट्रगल होते हैं, इमोशनली ब्रेकडाउन्स भी होते हैं। ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। सो हमें ये फर्क पता होना चाहिए कि रियल लाइफ और रियल लाइफ को कैसे हम अलग रख सकते हैं। जस्ट बिकॉज कि रियल लाइफ हमें इतनी परफेक्ट नजर आती है तो हम ये सोचते हैं कि हमें रियल लाइफ को ही अपनी रियल लाइफ बनाना है। उसमें जो चीजें हमें दिखाई देती हैं हम चाहते हैं वो सारी चीजें हमारी रियल लाइफ में ऐड हो जाएं, बट ऐसा नहीं हो सकता। रियल लाइफ तो सिर्फ एक कैमरे का कमाल है जिसमें सारी चीजें इतनी खूबसूरत नजर आती हैं। उसके पीछे की रियलिटी से हम सब अनजान होते हैं कि उसके पीछे क्या हो रहा है। सो हमें रियल लाइफ से सीखना चाहिए। जो अच्छी चीजें होती है रियल लाइफ में वो सारी चीजें सीखना चाहिए, बट रियल लाइफ को हमें अपनी रियलिटी समझ के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज वही हमारी रियलिटी है, उससे हम नहीं भाग सकते। रियल लाइफ में हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सब कुछ बहुत परफेक्ट होता है, बट रियल लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजों को खुद फेस करते हैं। तो हम रियल लाइफ की जो खुशी होती है वो वक्ती होती है, जितनी देर हम देखते हैं उतनी देर वो रहती है, बट रियल लाइफ में जो चीजें होती है वो परमानेंटली होती हैं, वो हमेशा के लिए होती हैं। सो हमें इन दोनों में फर्क पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आज मेरा कोई स्पेसिफिक कोई टॉपिक नहीं है, बस मुझे याद आया कि मुझे किसमें बोलना चाहिए, तो मैं इस्लामिक टाइप रिलेटेड टॉपिक है और वो है सदका करना। कि मैंने अभी जल्दी रिसेंटली उसके से मेरे बहुत ज़्यादा मैंने एग्जाम्पल्स देखे अपने लाइफ में। ऐसे तो मैं देखती ही आई, पर वो रिसेंटली हुआ मेरे साथ। खैर देखिए, जो सदका करना होता है वो इस्लाम में है, और जैसे सदका जरूरी नहीं है अपने माल का ही करें। हंसना मुस्कुराना किसी मुसलमान की तरह सदका है, रास्ते में उसको बर्तन हटाना सदका है, किसी से अच्छी बातें शेयर करना वो सदका है। तो ये सब बहुत सी चीज़ें सामने जो मतलब सदका है, बहुत सवाब मिलता है, उसमें कोई हमारा कोई एनर्जी नहीं लगती है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो ऐसे से काम करने चाहिए, हमें जानना चाहिए इस्लाम को में कैसे से क्या काम है। और जहाँ तक माल की बात है तो अपने माल में से भी सदका करना चाहिए, क्योंकि जो वो है जो आने वाली जो परेशानी होती है हदीस में ही वो उसे दूर कर देती है। और जो मैंने कुरान जो सुना मुनाफिकून उसकी आयत है कि जो मैयत जो है वो ना सदका को तरजीह करते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ मतलब मुझे एक बार लौटा दे वापस तो मैं नमाज पढ़ूंगा, हज कर लूँ। वो कहते हैं कि मुझे सदका करना है, मैं नए लोगों में शुमार हो जाऊँ। तो इसलिए वो सदका को क्यों तरजीह करते हैं? क्योंकि वो देखते हैं उसकी जो सवाब है, उस सदका में कितना सवाब है कि मैयत जो कब्र में है वो उसके लिए मतलब चाह रहे हैं मुझे भाई यहाँ से वापस भेज दिया जाए तो मैं जाके वहाँ पे सदका करूँ दुनिया में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है इसका सवाब। तो खैर, तो कहते हैं ना माल में हम सदका करते तो कमी नहीं होती है, माल और बढ़ता है अभी। और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को शुरू सिखाइए, कोई ऐसे ना उनको अडॉप्ट करेंगे। पेरेंट्स की मतलब जिम्मेदारी है कि हम भी हैं तो अपने सिस्टर्स को सिखाएं। अब लाइक अभी देखिए रिसेंटली का वाकया है मेरे घर का, बहुत अच्छा वाकया, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने वो सुना। तो मेरी चच्ची सबसे छोटी चच्ची, उनकी बेटी है वह लाइक 8 साल की है, उसको आम बहुत पसंद है, वो हर खाने में वो आम खाती है। जब उस आम का सीजन था तो उस समय हमारे यहाँ एक आती औरत, मतलब बूढ़ी औरत है, वो ज़ईफ है, वो आई उस दिन और मतलब जो रहता है हमारे पास उन्हें दे देते हैं। तो उस दिन आई तो चच्ची पूछी कि आम है, आम से दे रहे। अब जब उसे पता चला उसका नाम होगा नहीं अपनी आम मत दीजिएगा, बिल्कुल मत दीजिएगा, चिल्लाने लगी वो। तो फिर उसके अम्मी उसको जाकर साइड बोली, उसके लिए भी रिस्पेक्ट है कि सामने नहीं बोला, जाके अपने किनारे बोली अपने। तो फिर चच्ची ने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं करते हैं, मतलब तुम दोगी तो ज़्यादा तुम्हें और देंगे। डायरेक्ट एक पॉइंट बोला कि तुम इन्हें दोगी अल्लाह ताला तुम्हें और नवाजेंगे, देना सीखो। उन्होंने एक बात मोरल को सिखाई लेसन, और माशाल्लाह अल्लाह की रहमत करम देखिए उस दिन अल्लाह फिर वो मान रही, फिर वो आम चला गया अपने पास दे दिए उनको। तो उस दिन शाम में कक्षा को मेरी कॉल आता है अपने दोस्त का कि आज ना हाँ आम है बहुत ज़्यादा, उन्होंने पार डाला था अपने दोस्त में, यहाँ से ले जाओ। और वो इतना ज़्यादा वो आम ले गए, वो भी फ्री में। तो फिर वो लड़की भी देखी कुछ, हाँ मतलब उसको लेसन मिला कि हाँ मतलब देने से जो है हमारे पास आता है। वो उसी दिन की बात है, उसी दिन उसके पास आम भी आ गया ज़्यादा। देखिए जो माल
जाती है, मेरे साथ कई बार ऐसे जल्दी हुआ है। तो खैर सब लोग सदका में क्या कर डालें, बहुत अच्छी बात है ये, और हमेशा भी आप कायम रहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भी पूरी बातें नहीं रखेंगे। आइए उनको बोले आइए 10 मिनट बोलेंगे, आइए स्लोली बोलेंगे, क्यों सुनो रिलैक्स होकर बोलिएगा, ठीक है? My name is Mohammad Yusuf. I study class 7th in Muslim Inter College. I am giving today highlight the meaning of respect and the importance of parents and elders. Respect means treating others the way we want to be treated. It means being polite, kind and listening to others. Our parents are important in our life. Thank you. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ना थके हैं पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसले जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है। माय नेम इज तैयब अंसारी, आई बिलोंग टू खैदुपुरा मऊ। एक आज की टॉपिक मेरा है कि एक बेटे की जिम्मेदारी। एक बेटा सिर्फ पैदा नहीं होता, उसे बोझ के साथ जन्म दिया जाता है। लड़कियां दुआओं में मांगी जाती हैं, लड़के भी मांगे जाते हैं सिर्फ बोझ उठाने के लिए। पैदा होते हुए उसे मर्द बना दिया जाता है। बचपन में उसे खिलौनों से ज्यादा उसे ताने सुनने को मिलते हैं, तुझ पर तो ही पूरा घर टिका हुआ है। ये बात उसे रोज याद दिलाई जाती है। वो बड़ा होता है और उसके साथ बड़ी होती है जिम्मेदारियां। माँ की दवाई, बहन की शादी, बाप की इज्जत, हर रिश्ता उसे के फर्ज आता है। वो रोता नहीं है क्योंकि उसे हर रोज उसे ये बताया जाता है मर्द रोते नहीं है। हकीकत तो कुछ और होती है, सबसे ज्यादा वही रोता है। एक बेटा अपनी ख्वाहिशें मारकर दूसरे के सपने जीता है और फिर भी हर सुबह मुस्कुराते हुए मिलता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेटे की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता। अस्सलाम वालेकुम।